قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ خوش خوش آنکھوں کو تازہ اولاد دیتے ہیں، عہد پیری کو پھر سے تازہ شباب دیتے ہیں۔ غفلت نہ کر خدا کی قسم، مصطفیٰ آج بھی تیرے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا خاتم الانبیاء والمرسلین۔ حمد و صلاۃ کے بعد نہایت واجب القدر سامعین ذی احتشام مہمانان گرامی، مشائخ اعظام، علماء کرام، سادات کرام اور ہر دل عزیز شخصیت ہمارے سر کا تاج جناب پیر طریقت رہبر شریعت صوفی سید لال حسین شاہ صاحب قدس سرہ العزیز، تمام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین ذی احتشام، جتنی دیر بیٹھنا ہے، جس محبت کے ساتھ ماشاءاللہ آپ نے صد کو سنا ہے، اسی محبت اور ذوق کے ساتھ بندہ نچیز کی گفتگو کو بھی سننا ہے۔ ماشاءاللہ ثناخان مصطفیٰ نے اپنا رنگ بھرا ہے، پھر اس رنگ کو چار چاند لگانے ہمارے استاد محترم عزت امام حضرت علامہ مولانا نیاز احمد سعیدی صاحب جنہوں نے پر حکمت گفتگو فرمائی ہے، اللہ پاک ان کا سایہ تادیر قائم دائم فرمائے، ان کے علم میں، ذوق میں، صحت میں، علم میں، سوز و گداز میں، اخلاص میں برکت عطا فرمائے۔ سامعین ذی احتشام، میں نے جو آیت مقدسہ مطالعہ پڑھی ہے، چونکہ اس ماہ رجب کو نسبتی 12 اماموں سے ہے، سبحان اللہ، بہت اچھے، بہت اچھے۔ ان کے اندر آپ دیکھتے رہیں، کبھی امام علی کی ولادت آتی ہے، کبھی علی اصغر کی آتی ہے، امام علی تقی کی آتی ہے، اس طرح پھر ولایت کا شہنشاہ مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا، آپ کی ولادت بھی اسی ماہ میں ہے۔ تو ولیوں کے سردار سے گفتگو کا آغاز کرنے کے لیے اس آیت مطہرہ کا سہارا لیا ہے کہ رب فرماتا قل اے محبوب آ فرما دیجئے۔ ویسے اگر وہ روزے کا حکم دے تو کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ یہاں پہ محبوب کو وسیلہ نہیں بنایا، ڈائریکٹ ایمان والوں سے خطاب کیا ہے۔ اور اللہ جب قرآن کے اندر ایمان والوں سے بات کری تو آمنو عام حکم ہے، ایک فرض عبادت کا حکم دے رہا، فرمایا آمنو ایمان والو تم پہ ماہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے۔ اور پھر حج کے بارے میں فرمایا من استطاع الیہ سبیلا، جو اس کی طرف جانے کی طاقت رکھتا ہے، استطاعت رکھتا ہے، وہ اس کا حج کرے۔ وہاں پر بھی محبوب کو وسیلہ نہیں بنایا۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز میں بھی محبوب کو وسیلہ نہیں بنایا۔ زکوٰۃ کا حکم دیا، محبوب کو وسیلہ نہیں بنایا۔ لیکن جب آل سے محبت اور مودت کی بات آ گئی، اللہ خالق کائنات نے سب کو پیچھے کر کے محبوب کو وسیلہ بنایا۔ محبوب آ فرما دیجئے۔ اللہ بڑا کیا ہے؟ یہاں پہ ایمان والوں کو خطاب نہیں ہے، یہاں پہ پوری کائنات کے لوگوں کو الناس کہہ کے خطاب نہیں کیا۔ محبوب کی آل کا ذکر کروانے کے لیے رب محبوب کا سہارا کیوں لے رہا ہے؟ فرمایا پتہ چل جائے کائنات والوں کو، عبادت کا ذکر کرنے کے لیے ایمان والوں کو خطاب اس لیے کیا ہے کہ عبادت انسان کو پاک کرتی ہے، اس لیے محبوب کا وسیلہ نہیں بنایا۔ لیکن محبوب کی آل کا ذکر کروانے کے لیے محبوب کو بھیجنے اس لیے رکھا کہ کائنات والوں کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ پاکوں کا ذکر کروانے کے لیے پاکوں سے کہلوایا جاتا ہے۔ جہاں نعرہ بنتا ہو تو سبحان اللہ کا کام چلا دیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اب دیکھیے، میں اپنے استاد صاحب کی دعا لے کر، یہ بڑا
حاضر دماغ ہو کے سنیے گا، کوئی بیدبی کی وجہ سے نہیں ہے، لیکن دیکھیں نبی پاک علیہ السلام نے زندگی کے آخری لمحات میں کیا فرمایا؟ آئے ہائے ہائے، میں تم میں قرآن اور آل چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ قرآن کا ساتھ تھی اللہ کے نبی نے آل کو بنایا، اصحاب کو نہیں۔ کیوں کہ نبی جانتے تھے کہ صحابی تو میرے چہرے کی زیارت سے بنتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے میں نے دنیا سے پردہ کرنا ہے، جب میں دنیا سے پردہ کر جاؤں گا صحابی بننا بند ہو جائیں گے، پھر وقت کے ساتھ صحابی کم ہونا شروع ہو جائیں گے، وہ پردہ کرتے چلے جائیں
کے ساتھ ہے, علی حق کے ساتھ ہے, حق علی کے ساتھ ہے. اور یہ دیکھیے تو صحیح, اب کعبے میں پیدا ہوئے نا لوگ کہتے ہیں نبی نو کی علم, نعوذ باللہ من ذالک. ادھر دیکھیں کعبے میں آنے والے کی شان کیا ہے. 3 دن ہو کے آنکھیں نہیں کھولتے. ماں نے اپنے شوہر فاطمہ بنت اسد کی والدہ, انہوں نے اپنے شوہر عمران المعروف ابو طالب ان سے کہا کہ بیٹا اتنا خوبصورت ہے, آنکھیں نہیں کھولتا, وجہ کیا ہے؟ علی پاک کی ولادت کے بعد ماں نے اٹھایا ہے, آنکھیں نہیں کھولی, کیونکہ علی پاک نے ہاتھوں کی نرمی محسوس کر کے کہا ہلے او ہاتھ نہیں آئے, ہلے او ہاتھ نہیں آئے. وہ گھر جاتی ہیں, ابو طالب اٹھاتے ہیں, پھر بھی ہاتھوں کی گرمائش کو سمجھا اور کہا نا 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 علی آنکھ نہ کھولی, ہلے بھی او ہاتھ نہیں آئے. 3 دن بعد میرے نبی آئے, فرمایا چچی سنا ہے بیٹا ہوا ہے؟ کہا ہاں بیٹا ہوا ہے, لیکن بے بدیجے بیٹا بڑا پیارا ہے, آنکھیں بڑی موٹی موٹی ہیں لیکن آنکھیں کھولتا نہیں ہے, بیٹا بڑا خوبصورت ہے لیکن آنکھیں نہیں ہیں. فرمایا چچی مجھے بھی تو دکھاؤ جو ہو بڑا گول مٹول, ہو بڑا خوبصورت لیکن آنکھیں نہ ہو. جیسے ہی ابو طالب کے ہاتھوں سے فاطمہ بنت اسد نے علی پاک کو لیا, علی پاک پھر کہتے ہیں ہلے بھی او ہاتھ نہیں آئے, لیکن جب فاطمہ اٹھا کے نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھوں میں رکھتی ہے تو جیسے ہی ید اللہ والے ہاتھوں کی نرمی آپ کے وجود کو محسوس ہوتی ہے, فوراً اپنی سرمگی اور موٹی موٹی آنکھیں کھول کر چہرے کا دیدار کرنے لگ جاتے ہیں. کہ علی پاک نبی پاک علیہ السلام جب علی پاک کا چہرہ دیکھتے ہیں فرماتے ہیں چچی آپ کہتی ہو آنکھیں نہیں ہے, میں محمد تو کہتا ہوں اس جیسی آنکھ ہی کسی کی نہیں ہے. اب دیکھیے جب تھوڑے جوان ہوئے نا, مجلس میں آنا جانا محفل میں شروع کیا تو نبی پاک نے فرمایا علی آج وہ بات تو بتاؤ جو بچپن میں آنکھیں نہیں کھولی تھی. علی پاک کہنے لگے کہ نبی پاک علیہ السلام سے یا رسول اللہ اس کائنات میں بچے بڑے ہیں جس نے پیدا ہوتے ہی پہلے اپنے ماموں کو دیکھا ہوگا, کسی نے ماں کو, کسی نے دائیا کو, کسی نے دادی کو, کسی نے نانی کو, کسی نے خالہ کو, کسی نے پھوپھی کو, کسی نے پھوپھا کو, کسی نے خالو کو, ایسے دیکھتے ہوں گے. لیکن میں نے سوچا کائنات میں ایک بچہ ایسا بھی ہو جو پیدا ہو کے نہ دادی دیکھے, نہ دادا دیکھے, نہ پاپا دیکھے, نہ ماما دیکھے, نہ مامی دیکھے, نہ ماموں دیکھے, نہ خالہ دیکھے, نہ خالو دیکھے, وہ دیکھے تو سب سے پہلا چہرہ منتہا کو دیکھے. سامنے نصیحت شام نبی پاک کا کلمہ پڑھنے والوں, پھر جب علی پاک نے اتنی بات پھرائی نا, پھر میرے نبی پاک نے فرمایا النظر علی وجہی, علی سے عبادت, علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. اور علامہ صاحب بیٹھے ہیں, کوئی بندہ کعبے چلا جائے طواف بھی نہ کرے, بس کعبے کو دیکھتا رہے نا تو 20 رحمتیں اس پہ بھی برستی رہتی ہیں. کعبے کو دیکھنا بھی عبادت ہے تو علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. کیوں؟ علی کو نسبت کعبے سے ہے, ولادت کعبے میں ہوئی. اور توجہ کرنا, یہ علی پاک کوئی عام ہستی نہیں ہے, یہ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہے کہ کوئی دادا کے قدموں میں 40 دن بیٹھے وہ غریب نواز بنتا ہے, کوئی غریب نواز کے قدموں میں آئے وہ بختیار کاکی بنتا ہے, کوئی بختیار کاکی
वही आने लगा ना, उसने देखा ना कि अली पाक बैठे हैं, हाँ जी बैठे हैं। उसने कहा फिर एक बात तो बताओ, हाँ जी बताओ। उसने कहा कि आपने कहा है सलूनी माशे, तो जो मुझसे पूछोगे मैं बताऊंगा। हाँ हाँ हाँ, जो पूछोगे मैं बताऊंगा, ये मेरा दावा है। उसने कहा फिर एक सवाल का जवाब दो। वो आया तो था मेरे अली पाक को लाजवाब करने के लिए। उसने कहा एक कुत्ती और बकरे के मिलाप से, एक कुत्ते और बकरी के मिलाप से, एक कुत्ते और बकरी के मिलाप से बच्चा पैदा हुआ है, ये बताओ कि वो हलाल है कि हराम है। मेरे अजीजान गिरामी कर, जिसने साइंस पढ़ी हो वो साइंस का जवाब दे सकता है, जिसने मैथमेटिक्स में वो एमए किया हो वो उसका जवाब दे सकता है। वो जो बंदा जिस सब्जेक्ट में काबिल हो, जिस सब्जेक्ट की काबिलियत रखता हो, वो उसी उन्वान के बारे में सवाल बता सकता है। उससे हट के पूछा जाए, वो कहता है ये मेरा सब्जेक्ट नहीं, मैं इस सब्जेक्ट का प्रोफेसर नहीं, इधर देखिए तो सही। उसने आके कहा, आपने फरमाया जो पूछोगे मैं बताऊंगा, हाँ जी मेरा दावा है। उसने कहा फिर बताओ तो सही, कुत्ते और बकरी के मिलाप से बच्चा पैदा हुआ है, हलाल है कि हराम है। मेरे अली पाक की पेशानी में पसीना नहीं आया, वह नहीं आए, क्योंकि वो जानते थे कि मैं किसी कॉलेज में पढ़ के अली नहीं बना, मैं किसी स्कूल में पढ़ के अली नहीं बना, मैं किसी खानकाह में बैठकर अली नहीं बना, मैं मोहम्मद मुस्तफा की गोद में पल के अली बना हूं। और मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु ने अना मदीनतुल इल्म वो अली जुम बाबूहा का टाइटल दिया है। मैं वो अली हूं जिसे मन तुम तो मौला हूं, फहाजा अली जुम मौला का ताज नबी ने पहनाया है, जिसे असदुल्लाह का टाइटल रब्बे जुल जलाल की तरफ से मिला है। ये वो अली जुल मुर्तजा है कि जिनके निकाह के लिए उस्मान गनी अपने तलवार इनसे खरीदे, फिर वही तलवार इन्हें गिफ्ट करते। ये वो अली जुल मुर्तजा है जिनके बारे में फरूक आज़म दुआ करते हो, या अल्लाह मेरी जिंदगी में वो दिन ना लाना जो अली के बगैर हो। ये वो अली जुल मुर्तजा है जिन्हें देखकर अबू बकर सिद्दीक मुस्कुराए और मुबारक दे, अली खुश हो जा। मैंने नबी से सुना है कि जन्नत में वही जाएगा जिसे अली इजाजत देगा। नबी का कलमा पढ़ने वालों, नबी से मोहब्बत करने वालों, नबी का कलमा पढ़ने वालों, अली जुल मुर्तजा की जिंदगी से मैं ख्वाजा साहब पे आने लगा हूं। अब सुनिए तो सही, अली जुल मुर्तजा शेर खुदा ने फरमाया उसके बैठने का अंदाज दे, अगर तो वो पांव फैला के बैठता है तो फिर हलाल है, अगर कुत्ते की तरह अगर हाथ फैला के बैठता है तो फिर वो हलाल है, अगर वो कुत्ते की तरह आगे हाथ समेट देता है वो हराम है। उसने कहा कई मर्तबा देखा है, कभी फैला के बैठता है, कभी समेट के बैठता है। आप समझ गए कि इसकी मकारी क्या। आपने फरमाया उसके सामने चारा रख के दे, खा ले तो हलाल है, ना खाए तो हराम है। कहने लगा ए भी करके देखे, कभी खांदा है कभी नहीं खांदा। आपने फरमाया फिर ऐसा कर, पानी रख के दे, बकरी की तरह पिए हलाल है, कुत्ते की तरह चाट के पिए हराम है। उसने कहा कई मर्तबा करके देखा है, कभी बकरी की तरह पीता है, कभी कुत्ते की तरह पीता है। आप समझ गए कि ये मुझे लाजवाब करने के लिए आया है, लेकिन इस कायनात में वो लाल तो दिखा जो अली को लाजवाब कर दे। अब अली को लाजवाब करने वाले को ऐसा जवाब मिला कि शामिल हम किसी जानवर की मालूमात नहीं हो, साइंस पढ़ के लेते हैं। और जब खोल किसी किताब में आया हो कि अली ने साइंस पढ़ी है, अली के इल्म का अंदाजा करो। अली पाक ने जानवरों का मुताला किया नहीं, लेकिन सुन लो अली ये जानते थे हलाली के अंदर क्या होता है और हरामी के अंदर क्या होता है। फरमाया अच्छा चारा भी कई मरतबा खिला के देख लिया, पानी भी पिला के देख लिया, बैठने के अंदाज भी देख लिए, तुझे पता नहीं ना चलता, नहीं पता चलता। अली पाक फरमाते फिर छुरी फेर के देख, ओजरी निकले तो हलाल है, ना निकले तो हराम है। उनके कई वही करके देखे, कभी निकलती है कभी नहीं निकलती। सामीन जिसका इल्म का आलम ये है उसे अली कहते हैं। अल मुख्तसर, अब बात को समेटने लगा हूं। अब सामीन इसी दिशा, ये नबी की गोद में पले तो इल्म का आलम ये होता है, और जो फिर अली की गोद में पले वो उस हसन के इल्म का आलम ये होता है। खजूरों के बाग में हसन लेते हो और अमीर शाम एक लश्कर के साथ आए और बाहर से देख के कहे हसन हसन, आप फरमाए लब्बैक अब्दी, मैं हाजिर हूं। बंदे क्या कहना चाहते हैं। साथ वालों ने कहा कि उसने इतनी बदतमीजी से हसन कहा, आपने इतनी मोहब्बत से लब्बैक अब्दी कह दिया। फरमाया उसने ऊंचा बोल के अपने नस्ब की पहचान कराई है, मैंने आहिस्ता और अदब से बोल के अपने खून की पहचान करवाई है। तो सही वो घोड़े से नीचे उतर गया। उसने कहा मैंने सुना है कि तुम्हारे बाबा का दावा था सलूनी माशितो। अब मैं पूछना ये चाहता हूं
तुम्हारा ये दावा तुम्हारे बाबा के साथ ही चला गया कि अभी भी तुम्हारे खानदान में ये दावा बाकी है? इमाम हसन ने फरमाया, हमारे चेहरे बदलते हैं, दावे नहीं बदला करते हैं, दावा भी वही है। सलूनी माशे तो उसने कहा, अच्छा तू कहता है तेरा दावा भी यही है तो तू समझता मैं चला जाऊंगा? उसने कहा ये तो खजूरों के बागों में लेटा है, ये बता एक एक दरख्त के ऊपर कितनी कितनी खजूर है। सुभान अल्लाह। आपने फरमाया सोन 2480 एक एक तने के ऊपर खजूर है। सुभान अल्लाह। उसने कहा तूने कह दिया मैंने मान लिया। अल्लाह अकबर। सॉरी 1280। और आपने फरमाया एक एक दरख्त के ऊपर 1280 सी खजूर है। उसने कहा ये ना समझने, तूने कह दिया मैंने मान लिया, मैं जब तक गिनवाऊंगा नहीं जाऊंगा नहीं, जाऊंगा नहीं उस वक्त तक जब तक गिनवाऊंगा नहीं। और उसने अपने सिपाहियों का फौरन खजूरें उतरवाओ, खजूरें उतर गई। उसने कहा गिनो। अब वो जो गिनवा रहा है उसके पसीने आ रहे हैं, जिसने कहा है वो आराम से फिर लेटा हुआ है। अब सुनिए तो सही, उन्होंने गिननी शुरू कर दी। उसने अब कहा कि किसी कोशे में एक कम कर दो, किसी में ज्यादा कर दो, किसी ढेरी में एक कम कर दो एक ज्यादा कर दो, दावा झूठा हो जाएगा। उन्होंने कहा अभी करते हैं अमीर शाम। शुरू हो गया सिलसिला। थोड़ी देर के बाद सारे ऐसे हाथ छाड़ कर खड़े हो जाते हैं। उन्होंने कहा हमसे नहीं होता। उसने कहा क्यों नहीं होता? तुमने उसने कहा तू कहता है एक काम कर एक ज्यादा कर, वो कहते हैं हम घटाते हैं तो घटती नहीं, बढ़ाते हैं तो बढ़ती नहीं। सब सारे काम आ गए। फिर मेरे शाम जब जलील हुआ तो घोड़े पे बैठ के जाने लगा, कहने लगा मानते हैं हसन कि तेरे घर वाले गैब जानते थे। आपने फरमाया गैब नहीं जानते थे, हम जो कह देते हैं रब कर देता है, हम जो कह देते हैं रब कर देता है। ये वो वाले हैं। अब सामने इसी घराने में पैदा होने वाले एक हुसैन है। बात तो बड़ी जल्दी से मुकम्मल करने लगा हूँ। सामने गौर करना। हसन की बात, फिर हुसैन की बात। ये हुसैन वो हस्ती है कि नाना जिसके लिए सज्जा लंबा करते हैं, कभी कंधों पे बिठा के गलियों में सैर कराते हैं, जिसके लिए जिब्रील कभी धरती बंद कराते हैं, कभी उसके लिए हिरन लेकर आते हैं, कभी उसकी तख्तियों का फैसला सुनाने के लिए आ जाते हैं। ये वो हसन पाक है कि फरमात उसाहर मुसल्ले के ऊपर हो, आप आने वाले आते हैं। अबू जर आ जाए, जब उम्मे ऐमन देख ले तो वो होता क्या है कि अबू जर आए तो वो देखते हैं कि दाने उठाने बोरी उठी हुई है, चक्की में दाने डाले हैं, बोरी उठाने वाला नजर नहीं आता, चक्की में दाने डालने वाला नजर नहीं आता, लेकिन दाने डाल रहे हैं, चक्की घूम रही है लेकिन घुमाने वाला नजर नहीं आता। फातिमा मुसल्ले के ऊपर है, घर में अली पाक भी नहीं है लेकिन बोरी हवा में है, उठाने वाला नजर नहीं आता, दाने डालने वाला नजर नहीं आता, लेकिन दाने बोरी से गिर रहे हैं, चक्की के अंदर जा रहे हैं, चक्की घूम रही है, घुमाने वाला नजर नहीं आता। फिर हैरान हुए कि हुसैन का झूला झूल रहा है, झुलाने वाला नजर नहीं आता। अब तवज्जो करना, दौड़ते हुए नबी की खिदमत में आके गए, या रसूलुल्लाह जब माजरा देखा है आपने अली पाक को बुलाने के लिए भेजा, लेकिन फातिमा के घर गया, फातिमा मुसल्ले पे है, जो बोरी उठी हुई है, दाने डाल रहे हैं, बोरी उठाने वाला नजर नहीं आता, दाने गिराने वाला नजर नहीं आता, चक्की घूम रही है, जो घुमाने वाला नजर नहीं आता। हुसैन का झूला झूल रहा है, झुलाने वाला नजर नहीं आता। मेरे नबी ने फरमाया जो बोरी उठा रही है वो भी फरिश्ता है, जो दाने डाल रहा है वो भी फरिश्ता है, जो चक्की घुमा रहा है वो भी फरिश्ता है। लेकिन सोना बुझाओ, मेरी फातिमा वो है कि अल्लाह ने इसके कार के कामों के लिए अपने फरिश्तों के साथ साथ फरिश्तों के सरदार की भी ड्यूटी लगाई है। बोरी उठाने वाला भी फरिश्ता, दाने डालने वाला भी फरिश्ता, चक्की घुमाने वाला भी फरिश्ता, लेकिन हुसैन को झूला झुलाने वाला, वो जो झूला झूल रहा है वो जल्दी नौजवानों का सरदार है, और जो झूला झुला रहा है वो फरिश्तों का सरदार है। अब सुनिए, ये वो हुसैन है कि फिर जिसने झोली झुलाते हुए भी कुरान सुना हो, नबी के कंधों पे कुरान सुना हो, मस्जिद नबवी में कुरान सुना हो, मिंबर पे कुरान सुना हो, नमाज़ों में कुरान सुना हो, हरम में कुरान सुना हो, नबवी में मस्जिद नबवी में कुरान सुना हो, मदीना की गलियों में कुरान सुना हो, अबू अली मुर्तजा की उंगली पकड़ के चलते हुए कुरान सुना हो, रात टाट घूमते हुए माँ से कुरान सुना हो, और रोटी खाते हुए कुरान सुना हो, पानी पीते हुए कुरान सुना हो, गोद में लेटे हुए कुरान सुना हो, झूले में लेटे कुरान सुना हो, जिन्होंने चलते फिरते उठते बैठते कुरान सुना हो। उस हुसैन की फिर शान ये आती है कि वो हुसैन पाक जब जवान होते हैं फिर वो अम्मा फातिमा से कहते हैं अम्मा जी आज एक बात रखो। हाँ बेटे कहो। कौन अम्मा? मैंने नाना के
कंधों पे सवार हुआ तो कुरान सुना, नाना की गोद में बैठा कुरान सुना, मस्जिद नबवी के मिंबर पे नाना ने गोद में बिठाया कुरान सुनाया, मैंने मस्जिद में नमाजें पढ़ी तो कुरान सुना, मैंने नाना के पीछे खड़े होकर कुरान सुना, मैंने बाबा अली के पीछे खड़े होकर कुरान सुना, मैंने भाई हसन के पीछे खड़े होकर कुरान सुना। आपने मुझे गुट्ठी दी कुरान सुनाया, आपने झूला झुलाया कुरान सुनाया, पानी पिलाया कुरान सुनाया, आटा गूंदा कुरान सुनाया, रोटी पकाई कुरान सुनाया, रोटी खिलाई कुरान सुनाया, पानी पिलाया कुरान सुनाया। और माँ मैंने इस कुरान को इतना सुन लिया है, वो सामने से जरा सुनना, वो हुसैन पाक कितनी शानों वाले हो गए, हसन की शान निराली, अब हुसैन की शान सुनो। अब माँ मैंने इतना कुरान सुन लिया, अब तुम्हें मस्जिदों में कुरान सुनाने वाले नजर आएंगे, नमाजों में कुरान सुनाने वाले नजर आएंगे, मिंबर पे कुरान सुनाने वाले नजर आएंगे, मस्जिदों में कुरान सुनाने वाले नजर आएंगे, तरावी में कुरान सुनाने वाले नजर आएंगे, जुमे में कुरान सुनाने वाले नजर आएंगे, ईदैन में कुरान सुनाने वाले नजर आएंगे, अरे तरावी में कुरान सुनाने वाले नजर आएंगे, पहाड़ों पे कुरान सुनाने वाले नजर आएंगे, बाजारों में कुरान सुनाने वाले नजर आएंगे, स्टेजों पे कुरान सुनाने वाले नजर आएंगे, और महफिल कुरान में कुरान सुनाने वाले नजर आएंगे, मदरसों में कुरान सुनाने वाले नजर आएंगे, खानकाहों में कुरान सुनाने वाले नजर आएंगे। लेकिन अब इस पूरी कायनात में क़यामत तक नेज़े की नोक पे कुरान सुनाने वाला सिर्फ एक मेरा हुसैन ही नजर आएगा। अली की गोद में पलने वाले को हसन हुसैन कहते हैं, फिर हुसैन की गोद में पलने वाले को ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, ज़ैनुल आबिदीन की गोद में पलने वाले को इमाम बाकिर कहते हैं, बाकिर की गोद में पलने वाले को जाफिर कहते हैं, जाफिर की गोद में पलने वाले को मूसा काज़िम कहते हैं, मूसा काज़िम की गोद में पलने वाले को अली रज़ा कहते हैं, अली रज़ा की गोद में पलने वाले को अली नकी कहते हैं, अली नकी की गोद में पलने वाले को अली नकी कहते हैं, अली नकी की गोद में पलने वाले को इमाम हसन मुसन्ना कहते हैं, इमाम हसन मुसन्ना की गोद में पलने वाले को सैयद ताहिर हुसैन कहते हैं, सैयद ताहिर हुसैन की गोद में पलने वाले को सैयद अहमद हुसैन कहते हैं, सैयद इमाम हुसैन की गोद में पलने वाले को सैयद दाऊद कहते हैं, सैयद दाऊद की गोद में पलने वाले को सैयद बदरुद्दीन कहते हैं, सैयद बदरुद्दीन की गोद में पलने वाले को सैयद दाऊद कहते हैं, सैयद दाऊद की गोद में पलने वाले को सैयद फखरुद्दीन कहते हैं, सैयद फखरुद्दीन की गोद में पलने वाले को सैयद हसामुद्दीन कहते हैं। अब कोई बोले ना बोले उसकी मर्जी है। और सैयद हुसैनुद्दीन की गोद में पलने वाले को कायनात में ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं। और सुनिए तो सही, इस गरीब नवाज की पहचान है। दो कलाम में सुना कर नीचे कदमों की जाने के बाद वो खत्म करता हूँ। इमाम हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह एक जंगल में बैठे हैं, सामने से अल्लाह की जान में मसरूफ है, एक जनाजा आ जाता है, साथ बड़े बंदे होते हैं, सामने से अल्लाह वाले कहते हैं बुजुर्गों एक जनाजा है, जनाजा आपने पढ़ाना है। उन्हें कहा मसला ही कौन है, हम पढ़ा देते हैं, तुम पढ़ने के लिए दो, तुम पढ़ने के लिए तैयार हो? उनका हाँ जी हम तैयार हैं। आपने फिर जनाजा आगे रखो, सुबह बांधो, नियत करो। नियत शुरू हो गई, सबने नियत की। अब सामने से पहली तकबीर है, अब बाबा जी पढ़े हैं सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व जल्ला सनाउका व जल्ला सनाउका व जल्ला सनाउका व जल्ला सनाउका व जल्ला सनाउका। पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं। फिर कुछ देर गुजरी, फिर आपने कहा अल्लाहु अकबर, फिर जल्दी से दुरूद पाक पढ़ा, तीसरी तकबीर शुरू हुई। फिर आपने कहा अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा फिर लिहयना, अल्लाहुम्मा फिर लिहयना, अल्लाहुम्मा फिर लिहयना, अल्लाहुम्मा फिर लिहयना। काफी देर गुजरने के बाद जब तीसरी तकबीर पढ़ ली, चौथी पढ़ी, उसके बाद आपने जब सलाम फेरा, सारे लोग हैरान हो गए। उन्होंने कहा बाबा बड़े बड़े जनाजे पढ़े, लेकिन
देते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, ये तो एक तरफ है ना, आप एक जगह से गुजर रहे थे, आपने देखा 7 बंदे हैं, वो 6 महीने के बाद एक लुकमा खाते हैं और आग को पूछते हैं। आपने पूछा कि तुम आग को क्यों पूछते हो? दलील आरिफीन किताब के अंदर आपको मिल जाएगी बात। उसके अंदर लिखा कि वो उन्होंने कहा जी ये जो आग है ना, ये अल्लाह के नूर का मजहर है और हम इसे इसलिए पूछते हैं कि अल्लाह हमें जहन्नम की आग से बचाएगा। अल्लाह हमें, आपने कहा ये तो अल्लाह की मखलूक है, ये तुम्हें कैसे बचा लेगी? और कहा जी हमारा इस पे अकीदा है। कहा अकीदा है, कब से पूछ रहे हो? उन्होंने कहा 6 महीने हो गए हैं इसको पूछ रहे हैं। उन्होंने कहा अच्छा, इसको पूछने का मकसद ये है कि जहन्नम से बचाएगी, तो चलो फिर इस आग में हाथ डाल दो जिसको पूछ रहे हो। उन्होंने कहा आग का तो काम है जलाना, अगर हमने हाथ डाला तो जल देगा। आपने कहा इसकी क्या औकात कि ये अल्लाह के बंदों को जलाए? ये कह के आपने अपनी नलैन उतारी, आग में फेंक दी, 1 घंटे तक नालैन आग के अंदर चलती रही। पूरे 1 घंटे के बाद ख्वाजा साहब ने अपने ही हाथ अंदर डाल के जूते को पकड़ा, यारे हाथ जलना तो दूर की बात, 1 घंटा आग के अंदर रहने के बाद जूते का एक तस्मा भी ना जला सकी। वो सारे के सारे कदमों में गिर के कहते बाबा तू है कौन? पता नहीं सहारा दे लो। ये तो नबी पाक के अलैहिस्सलाम गुलामों ख्वाजा गरीब नवाज की शान है। इसी तरह आप ले जाए ना गुलाम हसन स्वाति रहमतुल्लाह अलैह, उनका दरबार है। ये बात सुना के पीछे रखता हूँ, ये अंग्रेज हुकूमत, ये तो बड़े सगीर की बात है ना, आज की बात है, पाकिस्तान बनने से पहले की। वो ना हिंदू उन्होंने ना इनके खिलाफ ना वो केस कर दिया, अंग्रेज हुकूमत ने सम्मान भेजे इनके घर कि बाबा इनको तलब करो। उनका केस क्या था? उन्होंने कहा बाबा ना गुलाम हसन स्वाति जबरदस्ती मुसलमान का क्या करते? जबरदस्ती मुसलमान करते। आगे जज के सामने जी उन्होंने कहा बाबा आप जबरदस्ती मुसलमान करते हो, आपको जलाल आ गया। अल्लाहु अकबर, आपको जलाल आ गया। आपने जलाल मोड़ के कहा इनु मैं मुसलमान कीता है, इनु मैं मुसलमान कीता है, इनु मैं कीता है। बाबे की जहां जहां उंगली जाती सारे कलमा पढ़ के मुसलमान होते जाते थे। जज था वो परले दर्जे का काफिर था, उन्हें कहा बाबे की उंगल मेरे वाल होगी ते मैनू भी पढ़ना पड़ेगा। उठ के नशा लगा दे। बाबे ने उंगल करके कहते इनु मैं मुसलमान कीता है। जज भी कलमा पढ़ के कलमा जड़ी की कहता है बाबा तू है कौन? बाबे ने जवाब दिया तेनू पता नहीं सहारा दे नौकरा। यहां पे खत्म कर दे। तो बारिज़ मुस्तामी इसलिए फरमाते हैं कि जहां एक मुसलमान के मुकाम की इंतहा होती है वहां से मोमिन के मुकाम की इब्तिदा होती है। जब मोमिन के मुकाम की इंतहा होती है वहां से अब्दाल के वली के मुकाम की इब्तिदा होती है। जब वली के मुकाम की इंतहा वहां से अब्दाल के मुकाम की इब्तिदा होती है। जब अब्दाल के मुकाम की इंतहा वहां से कुतुबुल अब्दाल के मुकाम की इब्तिदा होती है। जब कुतुबुल अब्दाल के मुकाम की इंतहा वहां से कुतुब के मुकाम की इब्तिदा होती है। जब कुतुब के मुकाम की इंतहा वहां से कुतुबुल अख्ताब मुख्तियार काकी के मुकाम की इब्तिदा होती है। जब मुख्तियार काकी के मुकाम की इंतहा वहां से गौस के मुकाम की इब्तिदा होती है। जब गौस के मुकाम की इंतहा वहां से गौसुल वरा शेख अब्दुल कादिर जिलानी के मुकाम की इब्तिदा होती है। जब अब्दुल कादिर जिलानी के मुकाम की इंतहा वहां से तबा ताबी के मुकाम की इब्तिदा होती है। जब तबा ताबी के मुकाम की इंतहा वहां से ताबी वैसे करने के मुकाम की इब्तिदा होती है। जब तबी के मुकाम की इंतहा वहां से एक आम सहाबी के मुकाम की इब्तिदा होती है। जब उस सहाबी के मुकाम की इंतहा वहां से हुदैबिया वाले सहाबा के मुकाम की इब्तिदा होती है। जब हुदैबिया वाले सहाबा के मुकाम की इंतहा वहां से 700 ओहद वाले सहाबा के मुकाम की इब्तिदा होती है। जब ओहद वाले सहाबा के मुकाम की इंतहा वहां से बदरी साहब वहां से बैत रिजवान वाले सहाबा के मुकाम की इब्तिदा होती है। जब उनके मुकाम की इंतहा वहां से बदरी सहाबा के मुकाम की इब्तिदा होती है। जब बदरी सहाबा के मुकाम की इंतहा वहां से अशरा मुबशरा के मुकाम की इंतहा होती है, इब्तिदा होती है। जब उनके मुकाम की इंतहा वहां से खुलफाए राशिदीन के मुकाम की इब्तिदा होती है। जब इन